So let's start. Hello everyone. I am Sahil. This is second program of Pune Collective and I would like to welcome all of you for the same. पुणे कलेक्टिवच्या या दुसऱ्या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आप में से बहुत लोगों को पुणे कलेक्टिव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, पर जो लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा. जैसे कि हम सब जानते हैं, today the diverse and plural ideas of India under systematic attack. Over the last few years, we have seen an unprecedented rise of divisive and communal ideologies. From the murder of intellectuals to the attacks on students and universities, from the rising caste atrocities against Dalits to the failure of protecting the rights of women and minorities, from the politicization of NRC in Assam to the tragedy of democratic suspension in Jammu and Kashmir, from the systemic attacks on reason, scientific temper, logic, rationality, to the mob lynchings. These are just few examples of systematic violence in contemporary India. On this background, concerned citizens in Pune have come together to form the Pune Collective, aiming to bring democratic and peaceful voices together. पुणे कलेक्टिव्हच्या या माध्यमातून आम्ही समकालीन राजकीय तसेच सामाजिक भवतालाशी जोडून घेत संविधानाला अपेक्षित मूल्यांची उजळणी करू इच्छितो. आणि त्याची सुरुवात म्हणून 25 जुलैला आम्ही आमचा पहिला कार्यक्रम घेतला, स्टेट ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन इल्यूजन एंड सोशल डिवाइड्स, जिसमें केरल से सीनियर एजुकेशनिस्ट एंड एक्टिविस्ट डॉक्टर CR हमसे जुड़े थे और महाराष्ट्र से एजुकेशन रिसर्चर किशोर दरक भी हमसे जुड़े थे. जो लोग हमारा पहला लाइव सेशन देख नहीं पाए उनके लिए ये सेशन अभी यूट्यूब एंड फेसबुक दोनों पे उपलब्ध है, तो प्लीज गो एंड वॉच. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे, द स्टोरी ऑफ 2 लॉकडाउन्स. As we all know, last year on 5th of August, Article 370 of the Constitution of India was deoperationalized with an unilateral and undemocratic amendment to the same. The tragedy of the democratic suspension was that not only were the people of J&K not consulted before making such a huge decision about their political fate, but they were not even informed about the decision given the communication ban in the valley. जम्मू आणि काश्मीर मधलं कलम 370 काढून टाकण्यात आलं, त्याचा राज्य दर्जा काढून घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने कलम 35A देखील काढून घेतलं गेलं आणि राज्याची 2 केंद्रशासित भागात विभागणी केली गेली. हे सगळं करताना जनतेचं मत विचारात घेतलं नाहीच, तर कोणताही सुगावा सुद्धा लागू दिला नाही. To understand the gravity of the issue, we must listen to the voices of the people from the region. And for that, today we have 2 esteemed guests with us. It is my privilege to introduce them to all of you. Our first speaker is a prominent political figure from Kashmir, Comrade Mohammad Yusuf Tariq. He is a former MLA, senior leader of CPIM. He started as a student leader at Anantnag College. He won the seat for the Kulgam constituency in 1996, 2002, 2008, and 2014. He has had a turbulent political career with repetitive imprisonments along with attacks on his life. A very, very warm welcome to you, sir. Thank you very much. And let me Pune introduce... Collective. Yeah. Let me introduce to our second speaker, Anuradha Bhasinji, peace activist, civil society activist, an eminent journalist and executive editor of Kashmir Times. कश्मीर टाइम्स जो जम्मू का सबसे पुराना अखबार है, जिसने बहुत सारे कंटेम्पररी मुद्दे उठाए और हमेशा आम जनता का साथ दिया. पिछले साल जब मीडिया पे पूरी तरह से रोक लगाई थी, तो अनुराधा जी ने बहुत ही साहसी कदम उठाते हुए इस प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और प्रेस के फ्रीडम के मुद्दे को फिर से उजागर किया. अनुराधा जी, a warm welcome to you on Pune Collective. I would like to request each speaker to speak for approximate 30-35 minutes. We will take some questions from our audience at the end of every talk. हर एक स्पीकर के सेशन के बाद हम उनसे सवाल लेने वाले हैं इस बार. I request participants to keep your microphone off so that we will not disturb the speakers and other participants.
And also turn your camera off to save your bandwidth if you have a network issue in your area. So before handing over to the speaker, I would like to share something. As Comrade Tarigami is in Srinagar, internet connection is not good enough to connect through Zoom. And I think this itself is explanatory of the current situation in the valley. However, he will join us through the phone call, which we further broadcast to all of you. So this call might drop in between, but we will try to reconnect ASAP. हमें अंदाजा है इससे आप लोगों को सुनने में थोड़ी तकलीफ होगी. मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज बी पेशेंट एंड बी विथ अस. एंड नाउ आई रिक्वेस्ट कॉमरेड तारिगामी टू टेक ओवर टू यू सर. बहुत बहुत शुक्रिया. पूरे कलेक्टिव के इस इवेंट में शिरकत पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. जैसा कि अभी आपने कहा कि जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनसे भी मेरी ये अपील है कि थोड़ा सा पेशेंस से कुछ बातें सुन लें. मैं मराठी नहीं बोल सकता, लेकिन कोशिश कर लूंगा कि हिंदुस्तानी बोलकर अपने हमवतनों से कुछ बातें कर सकूं. 1 साल हुआ है जो हमारी कहानी दोहराई गई 2019 में 5 अगस्त को. और क्या हुआ तब और क्या गुजरी हम पर तब से लेकर आज तक, ये दर्दनाक कहानी है. मैंने बम्बई कलेक्टिव में भी ये कहा था जब मुझे मौका मिला वहां बोलने का. पैंडेमिक की सूरत नहीं थी, लेकिन यहां लॉकडाउन था. हमारी कहानी लॉकडाउन की पुरानी है. तब भी मैंने कहा कि जो आज हम पर गुजर रही है, क्या मालूम कल किस पर ये गुजरेगी. ये शुरुआत है जो इन्होंने हाकिमों ने शुरू किया है, हमारे हुकूक को सल्ब करना, उनको दबाना, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से दूर रखना, महरूम रखना. ये सिर्फ महदूद नहीं रहेगा सिर्फ जम्मू कश्मीर तक. यह अलग सवाल है कि हम पहले निशाना हैं, और अगर मेरे हमवतन इस पॉइजन को ना समझ पाए तो ये जहर हर सतह पर फैलने का इम्कान रहेगा. मैं आज ये फिर दोहराऊंगा कि ये जहर अब फैल ही चुका है. हमारे रिवायात पर, ट्रेडिशंस पर इस जहर का असर दिखने को मिल रहा है. हमने जो लंबी लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी, और महाराष्ट्र के बहादुर अवाम का एक नुमाया रोल रहा है उस लड़ाई में. और इसीलिए मैं दोहराना चाहूंगा, जो कुछ हमने हासिल किया उस लंबी लड़ाई से, क्या मिला हमें? बरतानिया की हुक्मरानी को खत्म किया, बड़ी कामयाबी है. हमारा मुल्क सॉवरेन मुल्क बना, खुद मुख्तार बना. लेकिन बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रही, बल्कि हमने मिल बैठकर ये अज़म दोहराया, ये यकीन दोहराया, इस रिजालू को पेश किया पूरी दुनिया के सामने कि हम जो दिशा मुकर्रर करने वाले हैं, डायरेक्शन मुकर्रर करने वाले हैं,
फ्यूचर इंडिया के लिए मिल बैठकर बुताई कर लेंगे। अफसोस ये कि उस वक्त एक और टेंडेंसी आई सामने, कुछ लोगों ने अलग मुल्क बनाने की बात कही। बहरहाल उस कहानी में मैं नहीं जाऊंगा। मजहब को बुनियाद बनाने की तब भी कोशिश रही, सियासत की, वतन बनाने की, नेशनहुड की। जिन्ना साहब थे, लेकिन महाराष्ट्र के एक और शख्सियत भी थे, सावरकर साहब। उन्होंने मुस्लिम नेशनहुड की बात कही, लेकिन यहां से आवाज उभरी हिंदू नेशनहुड की। बहरहाल पाकिस्तान बना, मुल्क तकसीम हुआ। क्या हुआ तब? उस नेशन मजहब की बुनियाद पर तकसीम ने हमारा शिराजा बिखेर दिया। लाखों लोग उजड़ गए, बेघर हुए, सड़कों पर लाशें गिरी। किसने मारा, कौन मरा, कौन किस धर्म के साथ ताल्लुक रखता है, वो पंजाबियों से पूछ लीजिए, लाहौर से पूछ लीजिए, अमृतसर से पूछ लीजिए, और वो बंगालियों से भी पूछ लीजिए, और वो फिर जम्मू के लोगों से भी पूछ लीजिए। इंसान इंसान नहीं रहा। पागलपनी ने पूरे इस एटमॉस्फेयर को अपने कब्जे में लिया। लेकिन तब भी यहां हमारे रहनुमा, भिन्न भिन्न रहनुमा, जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में, प्रांतों में जेलों का सामना किया, गोलियों का सामना किया, और ये कुर्बानियां देकर ही आजादी मिली। तोहफे में नहीं दी किसी ने। ये कोई फेवर नहीं था इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, जनता के लिए। ये लंबी लड़ाई की कुर्बानियों का नतीजा था, और बाद में दिशा मुकर्रर करने के लिए एक नई दिशा कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई गई, और वहां आईन बना, वहां एक फ्रेम बना, ढांचा बना फ्यूचर इंडिया का। और ये आइडिया मिला पूरे हिंदुस्तान के वासियों को कि ये देश बनेगा, इसके पिलर्स होंगे डाइवर्सिटी, प्लुरलिटी। इसका एक और पिलर होगा, हर सतह पर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होंगे, हर इंस्टीट्यूशन फंक्शनल होगा डेमोक्रेटिक बुनियादों पर, और यहां भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले होंगे, भिन्न भिन्न मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाने वाले होंगे या ना जाने वाले होंगे। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अकीदे के नाम पर। ये सेकुलर देश होगा, ये डेमोक्रेटिक देश होगा, ये प्लुरलिटी की, ये डाइवर्सिटी की, ये कास्ट की बुनियादों पर इम्तियाज नहीं होगा, अकीदे के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये रिजालू था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिसमें बड़े रहनुमा थे, और जिसमें कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, ये मैं कह देता हूं आज महाराष्ट्र के अपने भाइयों बहनों को, इंसाफ करें आप हमसे। आज हमारी शक्ल को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, आज हमारी आइडेंटिटी को मसक किया जा रहा है। आप हमारे वकील हैं, आप हमारी बड़ी अदालत है, आप ही हमारी पार्लियामेंट भी है। आप हमारी ये मुकदमा में आपकी अदालत में पेश करना चाहूंगा, हमारी कहानी सुन लीजिए। आपने हाकिमों की बातें सुनी, आपने टेलीविजन चैनल पर लगातार झूठ सुना,
फैक्ट्स को डिस्टार्ट करते हुए सुना। एक कश्मीरी आपसे बोल रहा है कि आप हमारी भी सुने। हमने तब जब महाराजा हरी सिंह डोगरा राज का आखिरी बादशाह, एक आखिरी रूलर, वो हेजिटेंट था, वो रिलक्टेंट था एक्सेशन करने में हिंदुस्तान के साथ, तब तक जब तक रेडर्स आए पाकिस्तान से जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की, उन्होंने इस्लाम की दुहाई देकर मुसलमान के नाम पर कश्मीरियों ने तब कहा कि मजहब, जो मैंने बंबई में भी उस वक्त दोहराया था, आज फिर दोहराऊंगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम बेशक मुसलमान हैं, लेकिन हमारी पहचान इंसानियत की पहचान है। हमारी पहचान यही है कि हम इंसान हैं, और मजहब अकीदा है हमारा, लेकिन मजहब बुनियाद नहीं बन सकता है अलग नेशनहुड बनाने का, इल्हा करने का, रिश्ता जोड़ने का। तब जाकर महाराजा ने गवर्नर जनरल को लिखा, 2 खत लिखे एक्सेशन के बारे में, और एक माहिदा हुआ, खोज भेजी उन्होंने, और माहिदा ये हुआ कि रिश्ता बनेगा। जम्मू कश्मीर की यूनिकनेस को मद्देनजर रखते हुए, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वजह की जाएगी। दिस वाज द कमिटमेंट ऑफ दोज फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस ढंग से जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुस्लिम पाकिस्तान नहीं, बल्कि सेकुलर इंडिया, नॉट हिंदू इंडिया बट सेकुलर इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, रिपब्लिकन इंडिया, उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ा। मेरे भाई, ये यूनिकनेस है, ये आइडेंटिटी है, ये वो तवारीखी हालात है जिनमें ये रिश्ता बना जम्मू कश्मीर का विद यूनियन ऑफ इंडिया। और ये जो 370 दफा वजूद में आ गई, पाठ बना कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले फाउंडर्स थे, उन्होंने अपनी विजडम के मुताबिक बनाया ताकि ये रिश्ता कायम रहे, ये रिश्ता महफूज रहे। व्हाट इज आर्टिकल 370? टू बी ब्रीफ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है जम्मू कश्मीर और इंडियन यूनियन के साथ रिश्ता जोड़ने का। ये एक ब्रिज है रिश्ते का बिटवीन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन ऑफ इंडिया। ये फेवर नहीं है भाई, ये किसी के कहने पर नहीं हुआ। दिस वाज नॉट जस्ट ए कंसेशन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। This was neither an appeasement as some sections of the population जो आज ये बकवास कर रहे हैं। It was not an appeasement. It was the outcome of a historical process. When people of Jammu and Kashmir rejected two-nation theory, when people of Jammu and Kashmir वो टाइड के खिलाफ गए और सेकुलर इंडिया एंड इंडिया जहां माइनॉरिटीज को, दलित्स को, ऑप्रेस्ड सेक्शंस को, हर जात के, हर अकीदे के, हर लैंग्वेज के लोगों को, ट्राइबल्स को, उन्हें प्रोटेक्शन होगी अपने राइट्स की, अपनी जिंदगी को संवारने की। दिस इज व्हाट वी कॉल आइडिया ऑफ इंडिया। व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर? क्या हुआ? 5 अगस्त को कागज का पर्चा नहीं बदला, वो रिश्ता
जो बना था बड़ी कुर्बानियों के बाद, जो रिश्ता बना नफरत की तैर के खिलाफ, जो रिश्ता बना, जो सपना बना, गांधी जी का सपना बना, कश्मीर के लीडरों का, जम्मू के लीडरों का सपना बना, और उस रिश्ते पर हमला किया गया, असॉल्ट किया गया। मेरे भाई, इसीलिए मैंने उस वक्त भी कहा, जब मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला, तब जब हमारे जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने अदालत से रुजू करके मुझे ट्रीटमेंट के लिए मौका दिलवाया दिल्ली आने का, तब जाकर हमने प्रेस को भी कहा, उस वक्त ये असॉल्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर पर नहीं, ये बिगिनिंग है प्रोसेस का, जिसमें सेक्युलर रिपब्लिक के फाउंडेशंस पर हमला है, और ये तैयारी है जो पूरा रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बुनियादों पर असॉल्ट का। Then what happened later? Not only that we were not consulted, Jammu was not consulted, Leh Kargil people were not consulted, Kashmiri people were not consulted. Kashmir, Jammu was converted into a big prison. जेल खाना बना दिया, और फिर पार्लियामेंट में कहा गया कोई बोलता नहीं है, वहां अमन आ गया। मैंने उस वक्त भी प्रेस में कहा था, क्या रिपोर्टर्स ने कभी रिपोर्ट किया है कि तिहाड़ जेल में कभी एहतजाज हुआ? क्या जेल में भी जुलूस होते हैं? आज तक ये कहानी दोहराई जा रही है। आज भी कश्मीरियों को, जम्मू के लोगों को ह्यूमिलेट करने में पीछे हटने वाले नहीं है ये, क्योंकि उनका अपना प्रोजेक्ट है भाई। वो प्रोजेक्ट क्या है? वो प्रोजेक्ट आजादी के मतवालों का प्रोजेक्ट नहीं है, एक साथ जीने का, एक साथ फ्यूचर को शेप देने का। ये मजदूर का फ्यूचर नहीं, किसान का नहीं, इंटेलेक्चुअल का नहीं, वुमेन का नहीं, दलित का नहीं, एक्सप्लॉइटेड पॉपुलेशन का नहीं। और यही वजह है कि आज पैंडेमिक है, और चाहिए तो ये था सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज किए जाते ताकि माइग्रेंट वर्कर को जीने का हक मिलता, ताकि किसान को आज सांस लेने का मौका मिल जाता, गवर्नमेंट सपोर्ट कर लेती। आज बेरोजगार, आज कितने करोड़ों की तादाद में हमारे लोग काम से गए, बेरोजगार बन गए, उनके बारे में सोचा जाता। आज वो टाइम नहीं है सोचने का। आज टाइम है कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल कानून कैसे लागू किया जाए पैंडेमिक में। आज टाइम है इन हाकिमों के पास कि वो आज डिलिमिटेशन कमीशन का मुकर्रर कर ले, हमें हमारी डेमोग्राफी को चेंज करके। आज इनके पास कानून है, नए नए कानून वज़ा कर लेना। कल ही उन्होंने कहा कि 1 साल की सेलिब्रेशन हम कर लेंगे। कौन सी सेलिब्रेशन? अपने ही लोगों को जेलों में बंद करना? कौन सी सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन कर्फ्यू लगाकर नहीं किया जाता, सेलिब्रेट नहीं किया जाता है रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करके। आज भी क्या हुआ? 1 साल से हम लॉकडाउन में है। क्या हुआ बिजनेस का? कश्मीर की बिजनेस का, जम्मू की बिजनेस का? कहाँ है टूरिज्म? कहाँ है हैंडीक्राफ्ट्स? कहाँ है एग्रीकल्चर? जम्मू बिखर गया, कश्मीर बिखर गया। जम्मू का नौजवान, लद्दाख का नौजवान, कश्मीर का नौजवान आज रो रहा है हमारे साथ क्या किया गया। लेकिन इनके पास दिल के बहलाने के लिए कहानियां हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर होकर मातम के दिन को ही मंदिर की बुनियाद डालने में फख्र महसूस करते हैं। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा
मैं सिर्फ अपने देशवासियों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश कर लूंगा, मुझे मेरा हक वापस दीजिए। वो वक्त हक वापस देने के लिए मैं आपकी मदद चाहता हूं। आप मदद क्या है कि एक कश्मीरी, एक डोगरा, एक लद्दाखी, एक डिग्निफाइड सर उठाकर जीना चाहता है, सर उठाकर जीना चाहता है। हमारी खामोशी को ताबीर मत कर लो। डोंट इंटरप्रेट इट एज साइलेंस। ग्रेवयार्ड की साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्ट्री इज द बेस्ट टीचर। बड़ी बड़ी फसाई कुव्वतें भी नहीं रही, ये अलग सवाल है। दुनिया का शीराजा बिखेर दिया, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मेरा कश्मीर, मेरा जम्मू मुझे वापस चाहिए। मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का हिंदुस्तान। जब मैंने तब मेरे बुजुर्गों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का आईना हमें अच्छा आईना लगता है, हमें ये चेहरा अच्छा लगता है इस मुल्क का, जहां मंदिर की घंटी भी बजे, मस्जिद की अजान हो और चर्च में भी कोई जाए और कोई शख्स साइंटिफिक टेम्पर का होकर ना जाए। ये मैं इसी देश के, ये मेरा बागीचा है जिसमें एक तरह का फूल नहीं, जिसमें तरह तरह के फूल हूं, हर किस्म के फूल हूं, और वो बाग सजता है, खूबसूरत लगता है। आज कश्मीर के जवान चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम क्यों जेल में जाए, हम पर शक क्यों किया जाए। आपने कहा कि टेररिज्म खत्म कर दिया, फिर सेडिशन लॉ क्यों लागू करते हैं, फिर प्रेस पर पाबंदियां क्यों हैं, फिर यूएपी का ड्रकोनियन कानून क्यों लागू होता है, फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्यों है। ये नौजवान पूछता है। उसकी नौजवानी, उसका यूथफुलनेस उसके लिए एक अजाब बन गया है। मैं अपने नौजवानों से, महाराष्ट्र के नौजवानों के पास ये गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज स्पीक। आपका बोलना हमें अच्छा लगता है, बोलिए सिर्फ अपनों के लिए बोलिए। कश्मीरी और कुछ नहीं चाहता है, वो कहीं और जाना नहीं चाहता, वो डिग्निफाइड लाइफ चाहता है। आपकी तरह जो एस्पिरेशंस हैं, 4G हो। 1 साल से पहले फोन बंद किया, फिर नेट सर्विसेज बंद किए, घरों को भी जेल खाना बना दिया, और आज 2G पर आप कहते हैं कि हमने मिलिटेंसी को रोक लिया, खत्म किया, काबू किया। अरे भाई, 4G से डरते क्यों हो? जम्मू को क्यों सजा देते हो? कश्मीर को क्यों सजा देते हो? कम्युनिकेशन, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, कश्मीर उस डिजिटल इंडिया के साथ मिलाइए। हम चाहते क्या है? रिस्टोर कर लीजिए डेमोक्रेसी। कश्मीर ने आज तक कभी देखी है डेमोक्रेसी? ये लंबी कहानी है कि हमारे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया गया, हमें हमेशा सस्पेक्टेड समझा गया, हमें हमेशा अलग समझा गया, गैर समझा गया, हमें अपनाया नहीं गया, हमें प्यार नहीं मिला हाकिमों से। और इसीलिए मैं ये कहता हूं, लेकिन हम भी नाउमीद नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या अब ये फाइनल है? अरे, तारीख का अभी कोई चैप्टर फाइनल है नहीं। जागीरदारी निजाम ने भी कहा था फाइनल राउंड है, ये हम ही आखिर है। आखिर कोई नहीं। सरमायादारी निजाम जिसने आज जीना जो खोखला बन चुका है, उसका खोखलापन आज हर जगह जाहिर हो रहा है। अमेरिका की बड़ी मैशियत भी अब नंगी हो रही है, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बीमारों का इलाज नहीं है। हमारा देश भी यही
तस्वीर पेश करता है, ये दुनिया बदल जाएगी, ये दुनिया नई दुनिया बनेगी। मेहनत कश अवाम महाराष्ट्र के, कश्मीर के हर सतह पर पूरी दुनिया में लड़ेंगे, एक नया सपना लेकर आगे बढ़ेंगे, जहां आप और मैं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, जहां मैं तुमसे डरूंगा नहीं, तुम मुझसे डरोगे नहीं, कोई फूट डालने वाला नहीं होगा, कोई नफरत फैलाने वाला नहीं होगा, दोस्तों की तरह रहेंगे, साथियों की तरह जिएंगे। उस दिन का इंतजार है मेरा, उस दिन का इंतजार है हम सबका। Thank you, Comrade Tarigami. This was really an overwhelming session for all of us. Indeed, an eye-opener for many of us. I'm sure now people will understand the severity of the situation. And now I ask audience if they have any question, please comment कीजिए, chat box में पूछिए. We can take some few questions. Please share. Okay, एक क्वेश्चन है यहाँ पे. Yes. Do you think with the new economic policies, there is a shift from social and public sector to promoting the private sector for the development in the valley? And how do you think? Which development? Sorry. You see, the first thing is I could understand your question. Yeah. You just tell me. Sure. In the whole of the world, जो अभी फाइनेंस कैपिटल के डिमांड्स हैं प्राइवेटाइज करने का, और हमारे देश में एक लंबी लड़ाई के बाद पब्लिक सेक्टर एक के इंस्टीट्यूशंस वजूद में आए, प्राइवेटाइज करके क्या मिला? महाराष्ट्र को मालूम है, बिजली को प्राइवेटाइज करके क्या मिला महाराष्ट्र के लोगों को? LIC के लोगों को आप बताइए, प्रॉफिटेबल एक सर्विस है, उसको प्राइवेटाइज करके कितने लोगों को आप इनसिक्योर बना, जबकि हमारे देश के अंदर जॉब का एक बड़ा मसला है, आगे भी रहेगा। ये जॉब प्रमोटर्स नहीं है मौजूदा डिस्पेंसेशन, बल्कि जहां जॉब है वहां और उनको इनसिक्योर बना लेना। रेलवे जो ब्रिटिशर्स ने कायम की, और एक ऐसी सर्विस जिससे गुड्स के एतबार से, ट्रैवल के एतबार से एक कोना दूसरे कोने के साथ और फिर अफोर्डेबल। प्राइवेटाइज करने का मतलब क्या है कि आप इसको प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन में तब्दील कर रहे हैं। प्रॉफिट्स एट हुज कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ पुअर इंडियंस, अनएक्सेप्टेबल। आप एयरवेज को कर रहे हैं, पहले ही अनएफोर्डेबल है और ज्यादा अनएफोर्डेबल बन जाएगा। आप डिफेंस, आप अभी सेल्फ रिलायंस के नाम पर डिफेंस प्रोडक्शन को भी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हम किसी के ताबेदार ना बने। अभी कितने ही एग्रीमेंट्स आप करने जा रहे हैं अमेरिकन के साथ या किए हैं, जो आपको इतने बड़े देश को इस सतह पर ला रहा है। ये माफ कीजिए, हमें जो बात देश के बाकी लोगों को, हमारे मेहनत कश अवाम को, हमारे जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, तालिबे इल्म हैं, जवान हैं, बहनें हैं, दलित हैं, अगर उनको रास नहीं आती तो भला कश्मीर को ये दवाई कैसे रास आएगी? हमें डेवलपमेंट की खैरात के नाम पर एनसिलेवमेंट नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले वो ऑनर चाहिए, वो पगड़ी वापस चाहिए जो सरकार ने हमसे छीन ली है। भिखारी नहीं है हम। हमें आज तक ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट नहीं हुई। मेरा चैलेंज है, इस पर बहस कर ले हम आपस में,
जो आपने सरकार ने पेश किया मॉडल गुजरात का और कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का मॉडल, उसमें आप देख लीजिए लिटरेसी के फिगर्स, पॉवर्टी एलिवेशन की प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन, उसमें आप देख लीजिए जो लाइफ का सवाल है, ये आप देख लीजिए वहां। यारा आपका मॉडल, हमारे जम्मू कश्मीर के मॉडल, जिस पर मैं मुतफिक नहीं हूं पूरा, मैं इस मॉडल को और ज्यादा अपने नक्शे के अंदर लाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर का मॉडल आज भी पूरे हिंदुस्तान में एक नुमाया मॉडल है। हम इसको बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। और एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि अभी जम्मू कश्मीर का डेस्टिनेशन है जो फाइनल हो गया है, और देयर इज स्टिल नीड ऑफ और पॉसिबिलिटी टू रेजिस्ट एंड चैलेंज दिस अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस? कॉमरेड, कितना अभी सीएए का सवाल हुआ ना बाद में जी, क्या वो भी फाइनल राउंड है? जी जी। एनआरसी हुआ है ना जी। अरे साहब, अभी उन्होंने सेकुलरिज्म को भी अभी हमारे इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन के इंस्टीट्यूशन, इवन दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस जुडिशरी एज वेल। क्या हम ये मान लेंगे? हम उस अज़म के हैं कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ते रहेंगे महाराष्ट्र के लोगों के साथ। हमें मायूस किया है सरकार ने, मायूस नहीं किया है हमें हिंदुस्तान की जनता ने। हम हिंदुस्तान की जनता का हिस्सा बनकर अपने एस्पिरेशंस को वापस लाने की लड़ाई लड़ेंगे, जद्दोजहद जारी रखेंगे जी, जी, जी। और हमें उम्मीद है कि जीत हमारी होगी। थैंक यू वेरी मच कॉमरेड। थैंक यू सर। जैसे ही आपने आपके इसमें बात बताई कि ग्रेवयार्ड की साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है और नहीं हो सकती। हर एक कश्मीरी को एक डिग्निफाइड लाइफ चाहिए और उसकी आवाज़ जो आप भी उठा रहे हैं और हम भी इस प्लेटफॉर्म से उठाते रहेंगे, और हम आपको यकीन देते हैं कि ये जो शब्द आपने बोले हैं हम इसको दोहराएंगे, हम इसको और अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगे और आपकी और हम सब की बात आगे रखेंगे। आज के ये पहले सेशन के बाद एक बात तो हमें समझ में आई है, कश्मीर बात कर रहा है, अभी हमें उसको सुनना है और वो बात दोहराना है। ये सियासत हमारे बीच कितनी भी ऊंची दीवार खड़ी करे, हमें उसे प्यार से गिराते हुए आगे जाना है, और हमें यकीन है कि हम इसे गिरते हुए देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये वादा रहा जी आपका और हमारा, मिलकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर joining us today. And thank you, sir. Now I request Anuradha ji, please take over. नमस्कार। तारिगामी साहब ने काफी पैशनेट एक स्पीच दी। मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स सामने रखना चाहूंगी कि जो आर्टिकल 370 है जो हटाया गया या डी ऑपरेशनलाइज किया, रीड डाउन किया, वो किन सर्कमस्टेंसेस में बना था, और एक हिस्ट्री रही है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का एक सेशन जो है वो 1947 अगस्त में नहीं हुआ था, अक्टूबर में हुआ था, खास कंडीशंस के तहत। उससे पहले 3 महीने 4 महीने वो एक इंडिपेंडेंट रीजन रहा, क्योंकि वहां पे एक हिंदू महाराजा एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को रूल कर रहे थे, और उनको चॉइस दी गई थी कि आप पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि बंटवारा जो था वो रिलीजन और मजहब के लाइंस पे हुआ था। तो उनको ये चॉइस जब दी गई थी तो उन्होंने इंडिपेंडेंस प्रेफर किया। उसके बाद जब कबायली रेडर्स आए पाकिस्तान साइड से,
और तो जो महाराजा ने अपील की भारत की सरकार को अपनी फोर्सेस भेजें उसको रोकने के लिए, तो उन कंडीशंस में वो एक सेशन हुआ था, क्योंकि एक कंडीशन लगाई गई थी, हम तब फौजें भेजेंगे जब आप एक सेशन डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। एक सेशन हुआ, एक सेशन को एक डेमोक्रेटिक शक्ल देने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और उसमें कई डिबेट्स हुई, जितने कानून बनाए जा रहे थे, उसमें एक जो आर्टिकल 370 एक बनाया गया कि ये डिक्टेट करेगा रिलेशंस जो हैं जम्मू कश्मीर के इंडिया के साथ। तो वो एक लिंक भी था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक था बिटवीन रेस्ट ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर, और साथ ही में वो एक उस आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलता था, उसकी अपनी ऑटोनॉमी थी 3 सब्जेक्ट्स को छोड़कर, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस, जो इंडियन गवर्नमेंट के पास थे, बाकी सब जम्मू कश्मीर के अंडर थे के। और पहले जो हमारा स्ट्रक्चर रहा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर था, एक सदर रियासत था, यहाँ के कानून अलग थे। आहिस्ता आहिस्ता, ये कोई एकदम से आर्टिकल 370 नहीं हटा, आहिस्ता आहिस्ता पहले के 2 दशकों में ही 1950 के दशक और 1960 के दशक और 1975 तक ये आहिस्ता आहिस्ता इरोजन इसमें होती रही। कानून, सेंट्रल कानून यहाँ लागू होते रहे, और लेकिन उस वक्त भी एक कॉस्मेटिक डेमोक्रेसी का एक मैकेनिज्म था इन सब चेंजेस को लाने का, क्योंकि जितने भी चेंजेस आए वो यहाँ की जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव राय के साथ आए, उनकी वैलिडेशन के साथ आए, चाहे वो प्रेशर में करवाई गई या कुछ भी करवाया गया, लेकिन यहाँ के लेजिस्लेचर का उसमें राय थी, उसमें उसकी वैलिडेशन थी। तो कानून के तहत आर्टिकल 370 में कोई चेंज लानी है, कुछ करना है, यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी के तहत हो सकता है। एक्चुअल जो लॉ है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, J&K कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा गया है। मॉडिफिकेशन पावर्स को यूज करके आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली में तब्दील कर सकते हैं, आप उसको गवर्नर और पार्लियामेंट में तब्दील नहीं कर सकते हैं, जो कि पिछले साल 5 अगस्त 2019 को हुआ। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जब आर्टिकल 370 पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स चल रही थी, तो बहुत सारे मेंबर्स का ये मानना था कि हम जम्मू कश्मीर को, क्योंकि यहाँ के कुछ लोगों की जो राय थी वो मुख्तलिफ थी, कुछ पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, जैसे उस वक्त भी रजौरी, पुंछ के इलाकों में काफी इस किस्म का आइडियोलॉजी थी। कुछ लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और कुछ लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते थे। तो उनका मानना था कि हम जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती और पूरी तरह से इंटीग्रेट करके नहीं रख पाएंगे, इसलिए आर्टिकल 370 लाया गया था। और जब आर्टिकल 370 पास हुआ तो वो तकरीबन यूनानिमसली पास हुआ, और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बीजेपी के अपना खास लीडर मानते हैं जनसंघ के, तो उन्होंने भी, हालांकि बाद में उन्होंने नारा दिया एक विधान एक प्रधान एक निशान का, लेकिन उस वक्त उन्होंने भी इसको ओके किया था, इसमें रजामंदी दी थी। तो अब जब ये हटता है तो इसमें लाजमी बात है कि एक जो लोकली लोगों को या लोगों के जो नुमाइंदे थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनकी रजामंदी होनी चाहिए थी, लेकिन उनको कंसल्ट करने के को छोड़ दीजिए, उनको तकरीबन पूरी तरह से जेल में बंद करके रखा था। जितने भी लोग, पूरा जम्मू कश्मीर किसी न किसी पाबंदी, डिफरेंट लेवल्स की पाबंदियां लगाई गई थी। कश्मीर तो पूरी तरह से बंद था, वहां का
सारा यातायात सिस्टम, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी ठप था, बहुत सारी फौज लगी थी, लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में भर रहे थे, यहाँ तक कि पूरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप, और ये वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप है जो आज तक इतने प्रेशर्स का सामना करते हुए, काफी पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट जाते हुए, और बंदूक के डर का भी सामना करते हुए उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा वहां पे उठाया। वो तक वहां पे बंद थे। जम्मू में भी जो अगर कोई कुछ बोल रहा था उसको यहाँ धमकाया जा रहा था या उसको हाउस अरेस्ट में रखा जा रहा था, तो एक खामोशी थी या कुछ बीजेपी के, क्योंकि जम्मू की हिस्ट्री रही है पिछले कुछ सालों में, एक बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, दूसरा हिस्ट्री रही है कि वो वहाँ के लोग एक ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन, एटलीस्ट इमोशनल इंटीग्रेशन उनकी थी रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, और उनको लगता था कि कश्मीर का जो एंटी इंडियन नैरेटिव है उसको चैलेंज करने की जरूरत है, इसलिए वो ज्यादा अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी हो गए थे अपनी थिंकिंग में। तो एक कुछ लोगों ने उसको सेलिब्रेट भी किया, बाकी खामोशी थी, कुछ लोगों ने अपोज किया, जिन्होंने अपोज किया उनको बंद किया जा रहा था। लद्दाख भी उसी तरह से डिवाइडेड था। ले में जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी है वहां पे लोग खुश थे और उनकी बहुत देर से डिमांड थी, क्योंकि वो एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत डिस्क्रिमिनेटेड भी फील करते रहे हैं, और वहाँ एक खुशी की लहर दौड़ रही थी, लेकिन कारगिल में नाराजगी थी, उनको लग रहा था बुद्धिस्ट डोमिनेशन हो जाएगी और हमको बिल्कुल कुचला जाएगा। तो इस किस्म की स्थिति थी जिसमें ये जब ये एब्रोगेशन हुई। अब सवाल उठता ये है, अगर ये इतना डेमोक्रेटिक नहीं था, इतना एकदम से चुपके से बहुत प्लानिंग करके लोगों को बिना बताए, लोगों को अंधेरे में रखकर जब ये कदम उठाए गए, तो इसका पर्पस क्या था? जो हिंदुस्तान की सरकार ने अभी तक हमारे सामने रखा है, उन्होंने कहा इससे इक्वालिटी बनेगी, बराबरी होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों का को एक अलग से एक स्पेशल स्टेटस मिल रहा था और उनको हिंदुस्तानी हक नहीं मिल रहे थे, उनका एक अलग से, वो टोटली इंटीग्रेटेड नहीं थे, उनको इंटीग्रेट करने की जरूरत थी, उनको अपनाने की जरूरत थी। तो एक इक्वालिटी का उन्होंने दावा किया। दूसरा उन्होंने कहा इससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा डेवलपमेंट इससे हो जाएगी। तो इक्वालिटी की बात तो ये है कि आप, इक्वालिटी सिर्फ टेरिटरी को अपना के नहीं होती है। एक जम्मू कश्मीर एक भूगोल का हिस्सा नहीं है, जम्मू कश्मीर बनता है वहां पे रहने वाले लोगों से। जब लोगों की रजामंदी नहीं, लोगों से पूछा नहीं गया, लोगों पे आपने इतनी पाबंदियां लगा दी जो कि हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, तो इक्वालिटी की बात तो पहले ही आपने जो उसकी बुनियाद रखी वो इनइक्वालिटी पे रखी, क्योंकि आपके जब से ये चेंजेस आए हैं पिछले एक साल में, पाबंदियां गई नहीं है, वो एक परमानेंट शक्ल उसने उन्होंने इख्तियार कर ली है। कर्फ्यू लगाना, सड़क पे निकलने नहीं देना, रिस्ट्रिक्शंस इस किस्म की, कम्युनिकेशन बैन जो काफी देर तक रहा, फोन तक नहीं काम कर रहे थे, मोबाइल फोन नहीं काम कर रहे थे, जो 1-2 महीने में रिस्टोर हो गए, लेकिन इंटरनेट पूरी तरह से ठप था 6-7 महीने, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब देना शुरू किया, आज की डेट में भी पूरी तरह नहीं दिया हुआ। एक साल बाद जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं हमने इस रीजन को इंटीग्रेट कर लिया है, यहाँ के लोगों के हकूक जो हैं वो इक्वल लेवल पे नहीं है। जब सेलिब्रेशन हो रही है एक साल की, तो भी कम से कम कश्मीर की जो वादी है वो पूरी तरह से एक लॉकडाउन, एक कर्फ्यू में थी। दूसरी आप एक जो बात करते हैं, सरकार ने बात की टेररिज्म इससे चला जाएगा। आर्टिकल धारा 370 और टेररिज्म का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि धारा 370 पिछले 70 साल में रही और टेररिज्म पिछले 30 साल में। पिछले 30 साल में टेररिज्म के उतार चढ़ाव रहे, 90 के दशक में बहुत ज्यादा थी और आहिस्ता आहिस्ता 2000 ऑनवर्ड्स वो कम होती गई। तब भी धारा 370 थी।
और अगर हम देखें कि किस लेवल का पिछले 1 साल की अगर बात ले लें, पहले के 6 महीने में रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा फौज तैनात थी, लोगों पे पाबंदियां थी, बहुत सारे लोग हिरासत में लिए थे, जो भी कोई whoever was seen as a mobilizer, जिसके पास पावर है मोबिलाइज करने का, उसको बंद कर लिया था। तो उसमें जैसे अभी तारिगामी साहब ने बोला कि जेल में कहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, तो जेल में तो बहुत कम ही रेयर चांस होएगा प्रोटेस्ट होने का या निकलने का या किसी के पास स्पेस होने का। तो 6 महीने तो थोड़ी खामोशी रही, कुछ कुछ चलता रहा, कुछ प्रोटेस्ट भी होते रहे, थोड़ा मिलिटेंसी भी होती रही, लेकिन पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो ये वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है। सरकार हमको आंकड़े देती है कि हमने 140 या 130 या 140 हमने मिलिटेंट मार दिए हैं 2020 के पहले 6 महीने में। ये इंडिकेशन, ये आंकड़े हमको सही तरह से कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि मिलिटेंसी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से। आप देखें कि जो बहुत सारे इसमें जो लोग मारे गए 130 या 140 में, इसमें बहुत सारे लोकल मिलिटेंट्स थे। इन लोकल मिलिटेंट्स में बहुत सा नंबर उन लड़कों का है जो पिछले 6 महीनों में जिन्होंने बंदूक पकड़ी। तो ये भी दिखाता है, जहाँ की 150 लड़के जो उग्रवादी मारे गए, तो बहुत सारे नौजवान जो हैं वो बंदूक की तरफ जा भी रहे हैं। इस किस्म की थोड़ी कहानियां आई हैं कि लड़के अपने घरों से डिसअपियर हो रहे हैं और फिर उसके बाद वो एनकाउंटर में मारे जाते हैं, तब जाके घर वालों को पता चलता है कि वो उन्होंने कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी। और जो पिछले हमने कुछ सालों में इंडिकेशन देखी, जब से 2012 से मिलिटेंसी फिर से राइज होने लगी, कि सिविलियन किलिंग्स बहुत कम हुई थी। अब हम पिछले 1 साल में देख रहे हैं सिविलियन किलिंग्स काफी हैं। पिछले साल अक्टूबर में वो ट्रक ड्राइवर्स को, ट्रक ट्रेडर, एप्पल ट्रेडर्स को उनको मारा गया। अभी 3 सरपंचों को मारा गया, एक पे अटैक हुआ, 3 बच्चे मारे गए, 2 औरतें मारी गई। तो ये एक बहुत जहरीली शक्ल इख्तियार कर रहा है, एक नया फेज जो मिलिटेंसी का है। और उसी मिलिटेंसी के साथ जुड़ी है हमारी बॉर्डर की स्थिति, क्योंकि अगर बॉर्डर्स काम रहेंगे, अगर एक पीस बनी रहेगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, तो मिलिटेंसी लो लेवल पे रहेगी। हम ले लें तो पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे 2014 में कोई 150 इंसिडेंट्स हुए थे सीज फायर वायलेशन के। 2019 में 3000 से ज्यादा इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो ये तनाव बढ़ता जा रहा है, और जिस किस्म की एक पॉलिटिकल चेंजेस जो लाई हैं, जो जिसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट हो सकता है, खास तौर पे नेबरहुड में, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी बहुत कश्मीर सेंट्रिक रही। तो जब उनका मौका लगेगा और जब उनको सूट करेगा, और जैसा कि पहले भी होता आया है, कंडीशंस फ्रस्ट्रेशन की इंडिया ने क्रिएट की और एक्सप्लॉइट उसको पाकिस्तान ने किया। 1990 में अगर वहां से बहुत सारे ट्रेंड मिलिटेंट भेजे गए या बंदूकें भेजी गई, तो वो इस वजह से भेजी गई क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्पेस कम हो रही। तो ये एक खतरा बना हुआ है। तीसरी चीज जो कहा कि डेवलपमेंट इससे आएगी, अगर आप देखें पिछले 1 साल में यहाँ का बिजनेस तकरीबन ठप है। जो बिजनेस चल रहा था, यहाँ के डेवलपमेंट इंडेक्सेस, एक बहुत गलत बयानी के तौर पे बोला जा रहा था कि ये जम्मू कश्मीर एक अंडर डेवलप्ड स्टेट है। जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट इंडेक्सेस नेशनल एवरेज से कहीं बेहतर थे, गुजरात से भी बेहतर थे। और यहाँ पर एक तरह से अब अगर आप डेवलपमेंट देखें, हम कई बार डेवलपमेंट को सही तरह से मेजर नहीं करते। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल यहाँ पे था, एक
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो कई राज्यों से कहीं बेहतर थी, क्योंकि यहाँ पे 1950 के दशक में आए लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मींस लैंड टू द टिलर। जब लैंड टू द टिलर गया, उससे काफी एक जो डिस्पैरिटीज हैं वो काफी हद तक रिमूव हो गई थी। लेकिन अब हम देखें पिछले 1 साल से जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल था उसको भी कंप्लीटली डिमोलिश किया जा रहा है। पिछले 1 साल में तकरीबन 40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सिर्फ कश्मीर की वादी में हुआ है। जम्मू में भी कम से कम उससे आधा नुकसान हुआ होगा। यहाँ के बिजनेस वाले डर के मारे ही एक पूरी तरह से असेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बोलने से भी कतराते हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है वो 18% पे है, जो कि देश भर के जो नेशनल लेवल की आप स्थिति देखें तो उससे तकरीबन डबल हो गई। तो इस किस्म की स्थिति बनी हुई है। उसके अलावा जो अब ये नए कानून लाए हैं उसमें जो बिजनेस लोकल बिजनेस वालों का या जॉब सीकर्स के कंसर्न्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि एक डोमिसाइल लॉ आ गया है जो कि नौकरियां लेने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए जो इस्तेमाल होएगा, और उसके रूल्स बहुत रिलैक्स कर दिए हैं। जो भी यहाँ पे 15 साल रहा, 7 साल जिसने पढ़ाई की, या 10 साल जो ब्यूरोक्रेट यहाँ पे काम कर चुका है या कोई और सेंट्रल सर्विसेज में रहा है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनकी फैमिलीज कर सकते हैं। इसमें कोई कट ऑफ डेट नहीं है, और ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, जिसका मतलब है 70 साल पहले कोई रहा या ये भी नहीं पता उससे पहले कोई रहा। तो ये एक बहुत बड़ा जो नंबर हो सकता है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको लगता है कि जो हमारा अपना एक छोटा सा एक मॉडल था जो कुछ हद तक सस्टेनेबल था, उसमें उसका एक ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहाँ के लोगों को बिल्कुल कंप्लीटली मार्जिनलाइज किया जाएगा जॉब्स के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में। अभी हाल ही में कोई माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हुए जिसमें लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि जो बाहर से जिनके पास मनी पावर था, टेक्नोलॉजी पावर था, उन्होंने 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, यहाँ तक कि कई कॉन्ट्रैक्ट्स में 9 गुना ज्यादा भी अपने रेट्स भरे। अब जो इतना रेट भरेगा वो उसकी कीमत भी वसूल करेगा, तो डर ये है कि इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक हो सकता है। दूसरा, जो रॉ मटेरियल्स बनेंगे, जैसे सैंड माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जैसे ये स्टोन क्वायरिंग के थे, तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर के लिए बढ़ जाएगी, और यहाँ पे जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उसका कंज्यूमर लोकल कंज्यूमर है। यहाँ पे अगर वो टेक्नोलॉजी उनके पास बेहतर है तो यहाँ के लोगों की नौकरियां भी जाएंगी जो रेगुलर उनको मिलती थी एम्प्लॉयमेंट। एडिशनल कॉस्ट हमारी ये हुई है कि सिविल लिबर्टीज अभी तक तहस नहस है। सिविल लिबर्टीज किसी तरह की कोई एग्जिस्ट नहीं करती, डेमोक्रेटिक स्पेस कोई एग्जिस्ट नहीं करती, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल खत्म है। पॉलिटिकल स्पेस, अगर आप बोलते हैं हम एक नई लीडरशिप लाएंगे, एक बेहतर लीडरशिप लाएंगे, एक बेहतर लीडरशिप कहीं बाहर से एक्सपोर्ट होके नहीं आती है, उसकी एक अपनी नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, और अगर नहीं होती है तो वो सही नहीं है किसी भी प्रजातंत्र के लिए। आप एक पूरे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके, और उसके बाद वो जब तक आपकी कंडीशंस पे राजी नहीं हो कि इस किस्म का पॉलिटिकल नैरेटिव चलेगा और इस किस्म का नहीं चलेगा, तो वो तो एक ऑर्गेनिक तरीका भी नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। और सबसे बड़ा झटका लगा है मीडिया को। मीडिया जो है उसको कंप्लीटली साइलेंस किया गया है। और मीडिया क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि मीडिया सिर्फ एक बिजनेस सेक्टर नहीं है। मीडिया है जो जिसको डेमोक्रेसी का 4th पिलर भी कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीडिया का काम होता है लोगों को इन्फॉर्म करना, मीडिया का काम होता है रूलर्स और रूल्ड को कनेक्ट करना। मीडिया रूलर्स की अचीवमेंट्स भी हाईलाइट करता है, उनसे सवाल भी पूछता है, उनकी खामियां भी बताता है, उनके गलत काम पे भी
नुक्ताचीनी कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है और उनसे सवाल पूछ सकता है। और साथ ही जो लोग जो दबे हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो कुचले जा रहे हैं, उनकी कहानियां बाकी लोगों तक पहुंचा सकता है और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचा सकता है। तो ये एक मीडिया का अहम रोल है और इसी वजह से मीडिया को चुप कराया जा रहा है। एक तो उसमें एक तो इम्पीडिमेंट्स आ रहे हैं कि पूरी तरह से जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो डिसरप्टेड है अभी काफी हद तक रिस्टोर हो गया, लेकिन उसमें एक परमानेंस नहीं आई है। जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो कश्मीर में कुछ दिन के लिए इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन बंद, इस किस्म का सिस्टम है। दूसरा, एक डर का माहौल बन गया है। पहले 8 महीनों में जो जितने भी पत्रकार थे वो ऑपरेट कर रहे थे गवर्नमेंट क्रिएटेड मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर से, जो एक छोटा सा कमरा था, 3-4 कंप्यूटर लगा दिए गए थे, जहां पे 15 मिनट एक जर्नलिस्ट को मिलता था और पूरा काम सर्वेलेंस में होता था। और तो 200 से ज्यादा जर्नलिस्ट पूरा दिन में कितना काम कर पाते हैं। पहले वो कुछ घंटों के लिए खुला, फिर वो 9 बजे तक खुलता था, उसके बाद अक्टूबर के बाद वो 11 बजे तक खुलने लगा। तो ये सब जो चीजें हैं उसके लिए एक डर का माहौल पहले ही बना था। उसके बाद कई जर्नलिस्ट पे, कई पत्रकारों पे केस भी दायर किए गए। 2 पे एंटी टेरर लॉ लगे उनकी फेसबुक पोस्ट के लिए, एक को फेक न्यूज के लिए चार्ज किया गया और कोई ठोस इसमें कुछ कॉन्क्रीट इन केसेस में बताया नहीं गया ये किस वजह से लग रहे हैं, किस बात पे लग रहे हैं, क्या किस सेक्शन के या फेक न्यूज वाला किस सेक्शन के तहत लग रहा है। उसके अलावा कई पत्रकारों को, जिन्होंने भी, कोई बहुत सारे पत्रकारों ने तो एक सेल्फ सेंसरशिप अपना ली, कुछ बोलना बंद कर दिया, वहां के लोकल अखबारों में एडिटोरियल्स बंद हो गए, ओपिनियन पेजेस बंद हो गए काफी देर तक। और जब रिस्टोर किया उन्होंने कुछ बोलना बंद कर दिया। उन्होंने जितने आर्टिकल्स थे या एडिटोरियल टिप्पणी थी वो कश्मीर की खूबसूरती पे हो रही थी या वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स पे हो रही थी या वहाँ की या कंबोडिया पे भी हो रही थी, लेकिन कश्मीर की पॉलिटिक्स के बारे में, कश्मीर के लोगों पे क्या गुजर रही है, कश्मीर की स्थिति पे, इस पे कोई चर्चा नहीं थी। तो जो जर्नलिस्ट, जो पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स लेके आ रहे थे जिससे सरकार अनकंफर्टेबल थी, उनकी पूछताछ होती रही, उनको बुलाया जाता था पुलिस स्टेशंस में, उनकी क्वेश्चनिंग होती थी कई कई घंटों और डराया धमकाया भी जाता था और ये सिलसिला आज भी जारी है। तो इस माहौल में एक प्रेस का काम करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा जो एक और जो इम्पैक्ट हुआ है वो है कि फ्रस्ट्रेशन लोगों की बढ़ रही है, एक डेस्परेशन बढ़ रही है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है जिसमें डिप्रेशन के मरीज बहुत सारे लोग हो रहे हैं, खासतौर पे बच्चे हो रहे हैं। एजुकेशन ने सफर किया है, हेल्थ सेक्टर ने सफर किया है, यहाँ तक कि आप डिजिटलाइजेशन आपने पूरी तरह से रिमूव कर दी, लेकिन साथ ही आप हिंदुस्तान में नारा देते हैं कि ये डिजिटल इंडिया है और सब कुछ आप डिजिटलाइज करते हैं। तो जब सारी सुविधाएं डिजिटलाइज्ड हैं, उसमें शामिल है हेल्थ सेक्टर से जुड़ी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसमें निचले तबके के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं, वो कश्मीर में नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अस्पताल तक में इस किस्म की सुविधा नहीं थी। तो ये जो एक एक एलियनेट किया जा रहा है, लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, उनको चुप कराया जा रहा है, उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसका, उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी आगे तक जाएंगे। इसके अलावा जो एक डर लोगों के जहन में है कि यहाँ पे एक डेमोग्राफिक फ्लडिंग हो जाएगी। कश्मीर में तो है कि डेमोग्राफिक चेंज हो सकता है, यहाँ का मुस्लिम मेजोरिटी जो कैरेक्टर है वो बदल सकता है, लेकिन जम्मू में भी इस किस्म का डर है क्योंकि लोगों को जहाँ पे पहले खुशी थी कि यहाँ पहले अब लोग बाहर से आएंगे, वो मोनोपोलीज अपनी क्रिएट करेंगे, वही नौकरियां ले जाएंगे, वही लैंड ओनरशिप भी उनकी होगी,
बिजनेस भी उनका होगा, तो इस किस्म के उनके डर हैं। सिमिलरली इन लद्दाख, जिन्होंने तो बहुत जोरों से सेलिब्रेट किया था जब यूटी स्टेटस मिला, लेकिन उनको भी बहुत लेट डाउन किया, क्योंकि जो जो उन्होंने मांग की थी कि हमारा ट्राइबल स्टेटस बचाया जाए। लद्दाख एक बहुत पिछड़ा इलाका है, एक कोल्ड डेजर्ट है, एक बहुत मुश्किल वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत स्पार्सली स्कैटर्ड है, एक बहुत बड़ा वो एरिया है। और उनका जो सर्वाइवल है, उनकी इकोलॉजी जो प्रोटेक्टेड इकोलॉजी है उसकी वजह से है। और उनका डर अब ये है कि जब बाहर से आपने सब कुछ ओपन कर दिया है तो हमारी इकोलॉजी पे इसका असर होगा, हमारी जिंदगियों पे इसका असर होगा। तो ये बहुत सारे डर हैं। दूसरा, जो लद्दाखीज को जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में कोटाज मिलते थे, एसटी कोटा मिलता था, शेड्यूल्ड ट्राइब कोटा, वो भी अब उनका चला जाएगा। तो ये इस किस्म के डर है। और लद्दाख में अभी तक उस लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 लाख है। वहाँ पे एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी हो जाती है, आप कितने इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, आप क्या क्या खोल सकते हैं, और जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत स्कैटर्ड है। और मैं समझती हूँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट, ये तो इम्पैक्ट रहा जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, और एक बहुत डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हिंदुस्तान में है या भारत के लिए जो इम्पैक्ट है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगा। एक तो जिस किस्म का ये मूव लिया गया, क्योंकि कश्मीर जो थी वो एक सोल थी इंडिया की। हिंदुस्तान कश्मीर को अपने साथ इसलिए रखना चाहता था क्योंकि कश्मीर एक जीता जागता एक बिगेस्ट सिंबल था इंडिया की सेक्युलरिज्म का। वो अब किसी हद तक वो रहा नहीं उस तरह से। और जिस जिस तरह से इसकी फाउंडेशन बनी गई, जो भी कदम उठाए गए, जो इंटीग्रेशन के नाम पे जो कदम उठाए गए, और इंटीग्रेशन के नाम पे आपने कदम तो उठाए लेकिन आप लोगों को अपने से और ज्यादा दूर ले गए हैं। जो लोग आपके साथ थे वो भी अब आपके नहीं रहे। तो ये जिस तरह से कदम उठाए गए, जो उसकी फाउंडेशन थी वो इतनी अनडेमोक्रेटिक थी, जो मेथड्स थे वो इतने अनडेमोक्रेटिक थे। तो ये हिंदुस्तान की प्रजातंत्र को वीकन करता है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को वीकन करता है। और एक अगर आप देखें कि कई एक ये लगता है कई तरह से कि कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनाया जा रहा था बाकी हिंदुस्तान में सिमिलर एग्जाम्पल्स रेप्लिकेट करने के लिए। अगर आप देखें पिछले कुछ महीने में जो एंटी-सीएए प्रोटेस्ट को जिस तरह से हैंडल किया गया, तो और बहुत सारे तरीके जिस तरह से कुछ एरियाज में मारा गया, या कुछ जगह पे बोला गया कि ये वायलेंट लोग थे, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को भी मारा गया और बोला गया कि ये वायलेंस कर रहे थे, या जिस तरह से केसेस लगाए गए चेरी पिक करके कि आपने मुस्लिम्स पे केसेस लगाए लेकिन जो हिंदूज वायलेंस में इंडल्ज कर रहे थे उनको पूरी तरह से छोड़ दिया, या जो दिल्ली में रायट्स हुए थे उसके बाद उसमें भी इसी तरह से जो नैरेटिव, ये सब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये कश्मीर में ट्राई हो चुके हैं और हो रहे थे काफी सालों से। दूसरी चीज जो हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है वो सिक्योरिटी के हिसाब, सिक्योरिटी को लेके। और जिस चीज को भारत ने हमेशा अवॉइड करने की कोशिश की है, मिक्स ऑफ सिक्योरिटी हैंडलिंग एंड डेमोक्रेटिक तरीके से कश्मीर को, कि इंटरनेशनलाइज ना हो, तो ये तो इंटरनेशनलाइज भी हो रहा है। और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब भी आप लोगों को दबाएंगे, ये कश्मीर की हिस्ट्री में भी है और अभी भी हम कुछ साइंस, अर्ली साइंस नजर आ रहे हैं, इसको वक्त लग सकता है लेकिन वहां पे बहुत बड़ा ये कश्मीर एक लावे की तरह फूट सकता है। और उसके साथ ही आप नेबरहुड के रिलेशंस को आप थोड़ा ऐड कर लें। अभी पहले तो पाकिस्तान ही एक चैलेंज था, लेकिन अब एक चाइना भी जुड़ गया है, और पाकिस्तान और चाइना के जो आपस में तालमेल है, जो उनकी आर्मीज का भी इंटरऑपरेबिलिटी रहती है, तो
ये एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है और ये इसको फर्दर इंटरनेशनलाइज भी कर देगा। तो मैं यही खत्म करूंगी कि आज हम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और हमें सोचना पड़ेगा कि जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं हुआ है, वो पूरे हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म का, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का। जी, थैंक यू वेरी मच. It was indeed a very resourceful session जिसने हमें ग्राउंड की रियलिटी से वाकिफ कराया है. There are few questions I have, so मैं आपसे वो अभी पूछता हूँ. लोगों ने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एंड इस चैट विंडो पे भेजे हैं, so मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूँ. What about the youth of Kashmir? What are they talking now? If you want to share any personal story, उनका क्या कहना है, वो इस सबको कैसे देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन आया है कि जम्मू कश्मीर ने सीए एनआरसी इशू को कैसे रिएक्ट किया है. मतलब ये तो सवाल है कि ये पूरा इंडिया में जो चल रहा था वो उन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वो एक बात है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था अगर पहुंचा है तो उसको कैसे रिएक्शन मिला है. और एक क्वेश्चन आया है कि एंटायर कश्मीर इज नॉट होमोजेनियस सोशियो पॉलिटिकली, एक होमोजेनियस नहीं है, तो उसका इंटरनल जो फॉल्ट लाइंस है विद इन द रीजन, तो वो क्या है और वो इस पूरे मुद्दे को कैसे देख सकते हैं. एंड देन देयर इज अनदर कमेंट कि अभी बहुत सारे डिरोगेटरी स्टेटमेंट्स बहुत सारे मंत्रियों ने किए जब ये आर्टिकल हटाया गया कि अभी कश्मीर तो खुला है, नाउ यू कैन मैरी अ कश्मीरी गर्ल, आप कुछ भी कर सकते हो एंड ऑल. तो उसको देखते हुए एंड व्हाट यू थिंक एज विमेन्स राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स को देके अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वो थोड़ा अभी दो तीन क्वेश्चंस ये आए हैं. हाँ, काफी. ये सीए एनआरसी जब हुआ तो यहाँ पे एक खामोशी थी, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुआ, उसका रिस्पांस ऐसा नहीं हुआ. हालांकि लोग देख रहे थे और कीनली देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इससे इम्पैक्ट नहीं होंगे, वहां तो मुस्लिम मेजोरिटी लोग हैं. लेकिन उनको लगा कि जो उनका काफी कुछ खत्म हो चुका है वो पिछले साल ही हो चुका है, और उसके बाद जो वो कानून बनाए गए कि नए सेटलर्स लाए जाएंगे, उनका सीए शायद वही है जम्मू कश्मीर के खासतौर पे मुस्लिम्स का या उनके लिबरल्स को जो इम्पैक्ट करता है. दूसरा एक सवाल पूछा कि यूथ वहां के क्या सोच रहे हैं. ये भी कहना मुश्किल है. अगर सिर्फ कश्मीर की वादी के ही लें तो कश्मीर की वादी में भी एक होमोजेनिटी नहीं है आइडियोलॉजिकल. कुछ हद तक सेंटिमेंट हो सकता है, जो एक पॉपुलर सेंटिमेंट है वो अपनी जगह है, लेकिन हर किसी का ये अलग अलग किस्म के जो लोग हैं, खास उसमें यूथ भी शामिल है, उनका रिस्पॉन्स किस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उनकी सोच डिफरेंट है काफी लोगों की. कुछ लोग तो तहस में आके कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब बंदूक ही रास्ता है, इस किस्म के भी लोग वहां पे हैं, या कोई और वायलेंट मीन्स इख्तियार करने का, या उस किस्म के भी लोग हैं. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअली सोचते हैं, बहुत क्रिएटिवली सोचते हैं, और पिछले कुछ 10 सालों में हमने देखा ये इस किस्म क्लास के लोग काफी उभरे. एक नई क्रॉप, एक टैलेंटेड क्रॉप ऑफ यंगस्टर्स जो कश्मीर में सामने आई, जो लिखते हैं, जो आर्ट के जरिए, जो म्यूजिक के जरिए, फिल्में भी बनाते हैं. मतलब हर किस्म के जो क्रिएटिव काम हैं उनके जरिए वो कम्युनिकेट करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और डायलॉग्स भी करते हैं, इंटरनल डायलॉग्स भी करते हैं, कोशिश करते हैं इंटर रीजनल डायलॉग्स भी हों, और हर मुद्दे को
सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट पे बात नहीं करते हैं, हर मुद्दे पे बात करते हैं, एजुकेशन की बात भी करते हैं, आरटीआई की बात करते हैं, और हेल्थ से जुड़ी बातें करते हैं, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी बातें करते हैं, और किस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ क्रिएटिंग देयर स्पेस, वो एक चलता रहा है और दोबारा से शुरू भी होगा। क्योंकि बातचीत जो मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी बातें मैं सुनती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्पेस लो की भी रहे, वो एक जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। तीसरी चीज है कि जो कम्प्लेक्सिटी विद इन द रीजन, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है अपने आप में ही। एक तीन मेन रीजन्स हैं यहाँ के। कश्मीर में मेनली कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमेशा से मुस्लिम रही। एक माइनॉरिटी कश्मीरी पंडितों की बहुत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी थी, 4%। बाकी तो सब या थोड़े से सिख्स हैं, हिंदूज और हैं, थोड़े से क्रिश्चियंस हैं, बट मेजॉरिटी इज कंप्लीट मेजॉरिटी इज मुस्लिम्स। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम्स के ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा गैप आ गया, क्योंकि 1990 में उनको अपने घर छोड़ के जाना पड़ा डर के माहौल में। लद्दाख के एक अपनी पिक्यूलियरिटी है। लद्दाख में अगर ओवरऑल आप देखें तो तकरीबन 50-50% मुस्लिम बुद्धिस्ट रेशियो है, लेकिन ले में ज्यादा पॉपुलेशन है और ले बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है, और कारगिल जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो कारगिल की ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी कश्मीर के साथ, और अभी हाल ही में वहां पे कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया कि हमको कश्मीर के साथ जोड़ दो, हमको ले के साथ नहीं रहना है। लेकिन और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और जो कि एक डेंजरस चीज हो सकती है विद इन द रीजन, के डिमांड्स शुरू हो जाएं फॉर फर्दर बाल्कनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि जम्मू देखें जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स रीजन है, जम्मू में कई जबानें बोली जाती हैं, जम्मू रीजन में कई अलग अलग किस्म के रिलीजन हैं, अलग एथनिसिटीज हैं। रजौरी पुंछ का जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ पहाड़ी लोग हैं, वहाँ गुज्जर लोग हैं, वहाँ मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, और पहाड़ी जो हैं वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो अलग अलग किस्म की डिवाइड्स हैं। जम्मू के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू मेजॉरिटी है, और उनका ज्यादातर नैरेटिव बहुत नेशनलिस्टिक रहा है, और पिछले कुछ सालों में प्रो बीजेपी भी रहा है। अभी नाराजगी बीजेपी के साथ ये है कि उन्होंने हमारी भी डिमांड्स नहीं सुनी हमें, क्योंकि जम्मू से ये डिमांड्स थी दबे आवाजों में ही कि हमारे जो डोमिसाइल राइट्स हैं वो हिमाचल के पैटर्न पे प्रोटेक्ट किए जाएं, यहाँ की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जाए, हमारे बच्चों के जॉब्स और एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब उनको मिले, और उनकी ये डिमांड्स मानी नहीं गई, तो एक नाराजगी है। और जम्मू और कश्मीर को हमेशा से जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस रही हैं, चाहे वो स्टेट के अंदर रही हैं और स्टेट के बाहर तो खैर वो ज्यादा ही पावरफुल थी, तो या मैं दिल्ली की बात करूंगी कि दिल्ली से जितनी भी वो पावर एक्सरसाइज होती थी, उनकी कोशिश रहती थी कि जम्मू को किस तरह से, डिविजन्स थी, एग्जिस्ट करती थी, अलग अलग आइडियोलॉजी थी, लेकिन उसको और वाइडन किया, उसको गैप को कम करने की कोशिश नहीं की, जो कि पॉलिटिशियंस अच्छे लीडर्स को करनी चाहिए थी। उसको इस्तेमाल किया गया कि इसको कश्मीर नैरेटिव को किस तरह से काउंटर करें। और ये कॉम्प्लिकेशंस अभी तक एग्जिस्ट करती हैं, और मुझे लगता है इसका ये अब किस तरह से पैन आउट होता है। एट द सेम टाइम सडनली जम्मू एंड कश्मीर, द यूथ आर कमिंग टुगेदर, कि उनके कुछ जो मसले हैं वो कॉमन मसले हैं, कुछ उनके कॉमन कंसर्न्स हैं, डेमोग्राफी फ्लडिंग को लेकर, डेमोग्राफिक जो ये डोमिसाइल राइट्स को लेकर, नौकरियों को लेके, जॉब्स, ये बिजनेस को लेके, या लैंड राइट्स को लेके, तो ये सब क्या ये आपस में जुड़ेंगे या क्या ये और दूर एक दूसरे से चले जाएंगे, ये अभी आने वाला वक्त बता सकता है।
एक और सवाल था जेंडर के लिहाज से। मैं आई एम ग्लैड मैंने एक जी पॉइंट जी छोड़ दिया था, जी और अगर वक्त होगा तो मैं जी, बिल्कुल बिल्कुल दो वक्त है तीन आप। मिनट और लूंगी इसको पूरी तरह से जी एक्सप्लेन करने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल वक्त है, आप बोल सकते जो हैं। आपने सवाल पूछा उसमें मैं पहले जाऊंगी। एक चीज जो भारत की सरकार ने कही थी कि जो जेंडर इनजस्टिस यहाँ पे हो रहा था, जो औरतों के साथ जुल्म हो रहा था जम्मू कश्मीर की, अब उनको फायदा होगा। तो इसमें ये कहाँ तक सच था, पूरा सच था या आधा सच था या बिल्कुल झूठ था? तो एक मेन चीज जो बोली जाती है कि यहाँ पे जो औरतें जो बाहर शादी करती थी उनके स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहते थे, जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलता है उनको छोड़ना पड़ता है। ये बिल्कुल गलत चीज है। ओरिजिनल जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था, जो आर्टिकल 370 में लिया गया, वो महाराजा के टाइम का हूबहू वही लिया गया। उसमें कहीं पे वो जेंडर न्यूट्रल है, उसमें कहीं पे जिक्र नहीं है कि औरत है या मर्द है, उसमें पर्सन्स लिखा गया है। तो पर्सन्स तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ एक क्लॉज है जो विमेन स्पेसिफिक है, जिसमें कहा गया है कि जो बाहर से औरतें यहाँ शादी करती हैं और अगर वो डाइवोर्स उनका हो जाता है या हस्बैंड का देहांत हो जाता है, तो उस सूरत में अगर वो यहाँ पे रह रही हैं और यहाँ पे सेटल्ड हैं, तो वो अपना स्टेट सब्जेक्ट रिटेन करती हैं। सिर्फ एक ये जुमला, एक ये क्लैरिफिकेशन दी हुई है, वो सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन थी। जब एम्बिग्विटी यहाँ पे आती है, जब एक मिनिस्टर 1900 आई थिंक 1967 और 68 एक रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने आप ही एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया और कहा जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके सर्टिफिकेट पे एक स्टैंप लगेगी, वैलिड टिल मैरिज। तो कई साल उसके बाद कई औरतों के साथ ज्यादती भी हुई और उन्होंने कोर्ट में अप्रोच किया। ये बहुत सारी पिटिशंस काफी साल तक चलती रही, फिर क्लब होके हाई कोर्ट में इसका जब डिसीजन हुआ 2002 में, तो उसके तहत कोर्ट ने फैसला लिया कि जो औरतें बाहर शादी करती हैं उनके स्टेट सब्जेक्ट नहीं खत्म किए जा सकते, उनके पास इक्वल हक है। तो ये मैटर सेटल्ड था। उसके बाद से जो स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट बनते हैं उसमें ये स्टैम्प जो है वैलिड टिल मैरिज अब इस्तेमाल नहीं हो रही थी। यहाँ पे बहुत सारे जो सेंट्रल कानून हैं जो औरतों के हित में हैं, उनमें से कुछ लागू हुए हैं, कुछ नहीं लागू हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अपने लॉज भी थे। कुछ चीजें जो थी वो इम्प्रूव हो सकती थी, लेकिन आप अगर पूरे देश भर में देखें तो जेंडर जस्टिस तो पूरी तरह से नहीं है। तो जेंडर जस्टिस दिलाने के लिए आप पूरा का पूरा ढांचा नहीं गिरा देते हैं, जी आप जी करेक्शन लेते जी हैं। जैसे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं था, लेकिन चाइल्ड मैरिज रेट यहाँ पे वन ऑफ द लीस्ट इन द कंट्री है। तो और दूसरा, जब ये दुहाई दे रहे हैं जेंडर जस्टिस की, आप बात कर रहे हैं विमेन राइट्स की, उससे एक साल पहले ये 2019 को आपने ये चेंजेस लाई और ये इस किस्म का नैरेटिव लाया। 2018 में बीजेपी के लीडर मुखालफत कर रहे थे, जो एक्यूजेशंस एक रेप विक्टिम की फैमिली लगा रही थी। एक कठुआ का रेप जी इंसिडेंट हुआ जी था, 8 साल की जी लड़की का रेप एंड मर्डर हुआ था, एक बहुत ही हीनस क्राइम था। और जिसमें वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे और डिफेंड कर रहे थे अक्यूज्ड को, जो कि अब कोर्ट ने भी साबित कर दिया है कि वो कन्विक्टेड भी हैं, वो गिल्टी हैं। या तो ये उनकी पॉलिटिक्स रही है। और आप 2000 ये 5 अगस्त के बाद देख लीजिए, आपने खुद ही देखा सोशल मीडिया पे कि गोरी गोरी लड़कियों से अब हम शादियां करेंगे, इस किस्म के बेहुदा कमेंट्स, और हम औरतों के साथ क्या करेंगे। तो आप और ये उनके या तो कुछ बीजेपी के अपने लोग कर रहे थे, कार्यकर्ता कर रहे थे, या उनके जो फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, दे फॉलो द प्राइम मिनिस्टर, या बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स उनको फॉलो करते हैं। तो जी अगर जी आप इस ऐसे लोगों के साथ आपके संबंध हैं, तो आप किस हद तक आप सही तरह से औरतों के हक की बात करते हैं?
जी जी, और कुछ सवाल आए हैं, अगर आप इफ यू से आई कैन Yeah, आस्क यू। या sure. सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन। एक तो वो बच्चों की शिक्षा को लेके है कि अभी ये पिछले साल में पूरा स्कूल कॉलेजेस बंद रहा है, तो अभी ये बच्चों, स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन, हाउ दे आर कोपिंग विद द सिचुएशन, वो एक क्वेश्चन था। एंड देन एक आपने जो बात सोशल कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ पे बहुत सारी मुद्दों पे, तो और एक बात यहाँ पे चलती रहती है, और एक क्वेश्चन भी आया था कि हाउ कश्मीरी पंडित्स हैव रिएक्टेड टू दिस डिसीजन। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कहना ये भी था कि वो बहुत सारे लोगों ने उस डिसीजन को बहुत एक्सेप्ट किया और उसको, उसका एक जश्न भी मनाया। एंड देन कश्मीरी पंडितों का भी 370 के जाने के बाद सिचुएशन वहाँ पे क्या है, एंड उनका भी क्या कहना है, वो एक ये था। एंड देन कश्मीरियत के बारे में बहुत सारी बातें रखी जाती है, तो वो कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए वो क्या करना चाहिए, और उसको क्या, किस तरीके से उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो एक सवाल आया था। एंड एक सवाल ये भी था, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलिटेंसी को डिफीट कर सकता है। और अभी ये 4 सवाल आए थे, तो इफ यू कैन प्लीज। ओके, मैं ट्राई करूंगी। स्कूल्स का देखिए बहुत बुरा हाल है, बहुत मुश्किल से बच्चे कोप कर पा रहे हैं, या जितने शिक्षक हैं उनके, वो भी बड़ी मुश्किल से कोप कर रहे हैं। पर कुछ लोगों ने अपने आप एफर्ट्स लिए हैं, कोई ओपन एयर क्लासेस वहां पे चल रही हैं। इवन जैसे कोविड का दौर है, तो जब बोला जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, तो वहां पे वो नहीं हो पाता। अभी आपने देखा, अभी तारिक आमी साहब को बोलना था, उनको ज्वाइन करना था ऑनलाइन, और उनके पास इंटरनेट नहीं था। तो यही चीज होती है, जब ऑनलाइन क्लास हो रही थी तो स्टूडेंट नहीं कई बार कर पाते, उनकी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है 2G पे। ये तो प्रॉब्लम। और कश्मीर में तो पिछले 1 साल से पहले, क्योंकि बंद भी रहा, रिस्ट्रिक्शंस रही, फिर एक सिविल कर्फ्यू चल रहा था, तो उसके तहत स्कूल बंद रहे काफी अरसा तक। जैसे ही खुले तो वो कोविड लॉकडाउन शुरू हो गया, तो कई स्कूलों ने मास प्रमोशंस दे दी, लेकिन बिना पढ़ाई के मास प्रमोशंस हुई। कईयों ने एग्जाम्स दिए तो सिलेबस कट कर दिया, तो लर्निंग प्रोसेस कहीं ना कहीं कम हो रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे सफर कर रहे हैं, या उनका साल वेस्ट हुआ है, या उनका लर्निंग कम हो गई है। और एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, कश्मीरी पंडित्स का एक ठोस तरह से कहना मुश्किल है, लेकिन जो प्रिडोमिनेंट वॉइसेस रही हैं, वो जो पावरफुल वॉइसेस हैं कश्मीरी पंडित्स में, वो काफी खुश थे जब धारा 370 को हटाया गया। और क्योंकि एक तलखी है उनके अंदर कि जब वो उनको वादी को छोड़ के निकलना पड़ा, और वो ब्लेम करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, कि ये सब टेररिस्ट के साथ थे। तो लेकिन उसके अलावा दूसरी आवाजें भी सुनने को मिलती हैं। कुछ कश्मीरी पंडित्स का जो अब कहना है कि अब यहाँ पे और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी हमारे कश्मीर में ही क्या सेटल होना, जम्मू में भी कश्मीर में वापस जाना क्या, जम्मू में जहाँ पे रह रहे हैं बहुत सारे पंडित, वहां पे भी ज्यादा मुश्किल जैसे कि बाकी जम्मू वालों के लिए होएगा। उनकी स्पेस और सुकड़ के रह जाएगी। और कश्मीर में कुछ पंडित जो रह रहे थे वहां पे, उनका मानना है कि मुस्लिम्स जो हैं उसके बाद बहुत सारे, खास तौर पे जो यंगर जनरेशन की जब हम बात करते हैं, और जो खास तौर पे एक तो मैंने बात की थी उन नौजवानों की जो बहुत क्रिएटिवली सोचते हैं, जो इंटेलेक्चुअली सोचते हैं, वो एक लिबरल तबका है। वो समझ सकते हैं कि जो सरकार कर रही है वो आम आदमी नहीं कर सकता। लेकिन जो वो गुस्से वाला, एक जोश वाला यूथ है, उसके लिए सब कुछ बहुत ब्लैक एंड व्हाइट और सिंपल होता है। They see a Hindu India, they see a
हिंदू वर्सेस मुस्लिम नैरेटिव, और उसमें एक जो नफरत जो पहले नहीं थी, जो हिंदुओं के लिए नफरत नहीं थी, और ये कश्मीरी पंडित कई इस बात से डरे हुए हैं कि अब हमारी वहां पे कोई स्पेस नहीं होगी वापस जाने की या रहने की। जो वहां पे रह रहे हैं वो भी इनसिक्योर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वो इस वजह से रह रहे हैं क्योंकि उनके अपने जो रिलेशंस, कम्युनिटी रिलेशंस जो दूसरी कम्युनिटी के साथ हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस वजह से वो रह रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या आती है, टेररिज्म चला जाता है, मेरा नहीं ख्याल है कि कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो पार्टीशन का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। कश्मीर की प्रॉब्लम जो है वो सियासी है। कश्मीर की प्रॉब्लम कुछ हद तक टेरिटरी की भी है, क्योंकि यहाँ पे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। और जहाँ पे कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर, कश्मीर कई बार मैं क्लैरिफाई कर दूं, कश्मीर का वर्ड जब हम यूज करते हैं तो कई बार एक एब्रीविएशन होता है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, तो मैं पूरी जम्मू कश्मीर की अभी बात कर रही हूँ। हालांकि हर एक रीजन की पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा है वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का मुद्दा है, अलग अलग पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का। और जब आप ये पॉलिटिकल है तो इसका हल भी पॉलिटिकल है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप कुछ हद तक दबा सकते हैं, अगर बहुत बढ़िया, बहुत परफेक्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आप मॉडल भी ले आए, आप कुछ हद तक दबा सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए कुचल नहीं सकते उस पॉलिटिकल एस्पिरेशन को। तीसरी चीज है कि कश्मीरियत को कैसे कश्मीरियत अभी अपने आप में जिंदा है, अभी खत्म नहीं हुई है। लोग जो वहाँ के हैं उनका जो एक अपना हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है, जो उनकी अभी दिलों की जो वार्मथ है वो अभी खत्म नहीं हुई, और जब तक वो है तो तब तक कश्मीरियत जिंदा है। ये कोई बाहर से आके नहीं जिंदा कर सकता, ये वहां के लोगों के लिए आप माहौल जितना क्रिएट करेंगे, अच्छा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देंगे उनको, उनको आप अपनाएंगे, सिर्फ उनकी टेरिटरी को नहीं अपनाएंगे, उन लोगों को भी अपनाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके वो क्या चाहते हैं, वो क्यों चाहते हैं ये सब कुछ। और मेरा ख्याल है कश्मीरियत तब जिंदा रहेगी। जी जी। मैम आपके लिए एक दो क्वेश्चन और है कि अभी बहुत सारे आपको सुनने के बाद बहुत सारे लोग और भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अभी कोविड को लेके सिचुएशन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या है, एंड देन जम्मू कश्मीर के ये एक साल होने के बाद ये पूरे ड्यूरेशन में ये मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस के लिए वहाँ के लोगों को कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है या वो कुछ एक्सेस कर पा रहे हैं कोई ऐसा मेंटल हेल्थ के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि मीडिया पॉलिसी अभी जो नया आ रहा है तो उसको लेके क्या इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ की जो जहां तक बात है वो हमारे यहाँ पर साउथ एशिया में पूरे ही उसको बिल्कुल एक नजरअंदाज कर दिया जाता है ज्यादातर। जो बाकी हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बहुत बीमारियां हैं, वो भी बहुत सेटबैक मिला, क्योंकि चाहे ये कोविड से रिलेटेड लॉकडाउन है या उससे पहले जो रहा, आपका फोन तक नहीं काम कर रहा, कोई कैंसर पेशेंट है, किसी को एक इमरजेंसी कोई मेडिकल एड चाहिए, कोई लेबर में जो औरत है उनको सही टाइम पे मेडिकल हेल्प नहीं मिली। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने केसेस खुद निगलेक्ट किए कि हम बाहर निकलेंगे, कोई हमको पुलिस धमका ना दे, कोई हमको पकड़ ना ले, हम जाएंगे कैसे, अगर हम चले जाएंगे हमारा फोन पे राब्ता नहीं रहेगा अपने घर वालों के साथ। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है आपके कांस्टेंट माइंड में प्ले कर रहा होता है, एक आम और नॉर्मल स्थिति वहां की कभी नहीं रही है। तो एक बिना कनेक्टिविटी के जाना कि हम बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे, तो बहुत लोगों ने अपने केसेस को खुद निग्लेक्ट किया।
तो जैसे वहाँ के डॉक्टर कहते हैं, जैसे कोई किसी को कोई मामूली किडनी प्रॉब्लम थी या लंग प्रॉब्लम थी, जो थोड़ी सी मेडिकेशन से ठीक हो सकती थी, वो निग्लेक्ट करते करते वो एक मेजर केसेस भी बन गए। तो इस किस्म की बहुत प्रॉब्लम्स आई। साइकोलॉजिकल जहां तक इम्पैक्ट की बात है, उस तरह की तो हमारी कैपेसिटी कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं है टू डील विद जो नॉर्मल एरियाज में जिस किस्म का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस सोसाइटी डील कर रही है, खासतौर पे यंगस्टर्स जिससे जिसकी गिरफ्त में है, तो उसके साथ भी हम डील नहीं कर पा रहे। और कश्मीर में तो फिनोमिनल है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। कश्मीर में बॉर्डर के इलाके देख लें या आपके बाकी वैसे ही हमारे इतने वो पहाड़ी इलाके हैं, टोपोग्राफी की वजह से भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कोविड के लिहाज से JNK हैज डन बेटर, JNK डिड बेटर। और मुझे लगता है ये एक दो चीजें थी कि शुरुआत में, अब थोड़ा आउट ऑफ हैंड होता जा रहा है, बढ़ रहा है नंबर, लेकिन शुरू के कुछ महीनों में जो बिल्कुल लॉकडाउन था, यहाँ जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन पहले हुआ, जो कंट्री वाइड लॉकडाउन थे, तकरीबन अनाउंसमेंट नहीं थी बट लॉकडाउन हो गया था, एक बैरियर्स लग गए थे और सब कुछ बंद था। और साथ ही में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जितने भी लोग जो बाहर से आ रहे थे उनको क्वारंटाइन करना, उसके बाद उनकी एक महीने बाद उनकी टेस्टिंग करना, जो भी लोग फ्लाइट से आ रहे थे, बाय रोड आ रहे थे, सबके टेस्ट हो रहे थे, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था। टेस्ट में जब नेगेटिव निकलते थे तो उसके बाद छोड़ते थे, उसके बाद भी 14 दिन का उनको होम क्वारंटाइन बोला गया था और उनपे पूरी मॉनिटरिंग उनकी हो रही थी। ये सिलसिला अब टूट गया है और पूरी तरह से नहीं ऑब्जर्व हो रहा। जम्मू कश्मीर में एक अच्छी चीज ये थी, वही जो मैं अभी बात कर रही थी, टोपोग्राफी वहाँ की ऐसी है कि वो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वो एक मुश्किल बन जाती है। ये एक बेनिफिट भी बन गया इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, क्योंकि बाहर से जो भी आ रहा है या विद इन द स्टेट, वो मोबिलिटी जो है ऐसे इलाकों में कम हो रही है। पर आहिस्ता आहिस्ता वो भी शुरू हो गया। लोगों को, जो लोग वहां से बाहर निकलते हैं काम के लिए, नौकरियों के लिए निकले होते हैं, अपने घर तो कभी ना कभी लौटेंगे। और एक चीज और जो बेनिफिशियल थी, क्योंकि इट्स एट वन एंड ऑफ द कंट्री जम्मू कश्मीर, तो एक मोबिलिटी जो थी वो लिमिटेड थी, वो कोई पासिंग बाय नहीं था, तो उस वजह से भी कंट्रोल था। लेकिन आज की डेट में भी बढ़ रहा है, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, लेकिन मैं पिछले हफ्ते देख रही थी तो 1 या 2% है ऑफ द नेशनल एवरेज स्टिल द कोविड केसेस, कोविड डेथ्स को ले लें तो इट्स नॉट दैट फ्राइटनिंग इज येट, लेकिन बढ़ रहा है तो इसका खतरा और आउट ऑफ हैंड हो सकता है। जी जी, एक क्वेश्चन आया था बीच में, वो मुझसे छूट गया था। आपने शायद उसका एक एग्जांपल भी दिया था कि SC ST का लेके वो थोड़ा इश्यू आया था लद्दाख के जी इसको एडमिशन का वो प्रॉब्लम आ रहा है या तो हाउ द दलित्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिस्पॉन्डिंग टू द न्यू चेंजेस। और ओके दूसरा ये उससे जो जुड़ा हुआ था कि अभी वहां से कुछ इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही है, तो वहां पे अभी कुछ ऐसे एट्रोसिटीज एंड और कुछ ऐसा हो रहा है जो बाहर कुछ नहीं आ रहा। एंड तो अगर वो रिसोर्स या वो न्यूज हमें देखना है तो हम इसको दुनिया के सामने वो आवाज कैसे रखेंगे अभी इसके बाद। आप पहले आवाज रखें कि प्रेस की आवाज आप बहाल करें, तो फिर आपको शायद आवाजें जी सुनाई देंगी। जी लेकिन जी ये तो रहा। अम, देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। अब बहुत सारे बीजेपी वाले अक्सर बोलते हैं कि वहाँ के दलित के राइट्स सप्रेस थे, अब उनको वो पूरे राइट्स मिल जाएंगे। वो वाल्मीकि एक कम्युनिटी है जिसके कोई वो 200 फैमिलीज थी जो पंजाब से लाई गई थी 50s में, क्योंकि यहाँ पे सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे थे। तो उनको रिप्लेस करने के लिए उस वक्त की जो JNK की हुकूमत थी, उन्होंने उनको लाया था पंजाब से और उस प्रॉमिस पे लाया था कि आपको यहाँ पे सेटल किया जाएगा। उनको जमीन दी गई, पर उसके बाद उनको प्रॉपर जो रेजिडेंट राइट्स नहीं दिए गए।
ये उसी तरह से ये बहुत, अब कोई 1000 या 2000 के बीच में इनका नंबर है, ये बहुत बड़े नंबर नहीं है, ये दलित क्लास है। उसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं, उनमें से भी 60 to 70% उनमें वो दलित हैं जिनको की राइट्स नहीं मिले थे। वो 1 या 2 लाख के बीच में उनका नंबर है। उनमें से कई बाहर भी चले गए, कुछ ने बैकडोर स्टेट सब्जेक्ट बनवा भी रखा था। तो ये 2 क्लासेस जो हैं, ये वाकई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये कंसिडर करने की जरूरत थी इनको, और ये विद इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हो सकता था। पूरी स्टेट में अलग अलग जो ये लेजिस्लेटर्स की रजामंदी से ही हो सकता था, लोगों की रजामंदी से हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ कभी भी। उसके अलावा यहाँ पे जो कहा जाता है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन स्ट्रक्चर जो है वो नहीं, इंडिया का जो रिजर्वेशन स्ट्रक्चर है वो लागू नहीं होता था, लेकिन जेएनके का अपना रिजर्वेशन स्ट्रक्चर था और अच्छा स्ट्रक्चर था। यहाँ पे SC ST को भी मिलता था, और क्योंकि यहाँ बैकवर्ड एरियाज है, बैकवर्ड एरिया वालों को मिलता था, बॉर्डर एरिया वालों को अलग से कोटाज मिलते थे। एक वो चीज थी, और एक बहुत बड़ी चीज, एक जो ये दलित ग्रुप्स हैं, कुछ लिहाज से वो खुश थे कि आर्टिकल 370 हटा, तो क्योंकि जो JNK में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है वो JNK में लागू नहीं था। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अट्रोसिटीज उस लेवल की कभी नहीं रही जितनी हम बाकी हिंदुस्तान में सुनते हैं, और उसकी एक वजह है, उसकी वजह थी वो लैंड रिफॉर्म्स जो हुए, जिससे लैंड टू टिलर मिला। उसमें से बहुत सारे बेनिफिशरीज जो हैं वो दलित रहे, जिनको दलित को आप पूरे देश भर में देख लीजिए, जमीन नहीं है, और उनको आज तक बिल्कुल एक जब जमीन मिलती है, जमीन से एक सेंस ऑफ डिग्निटी आती है, और उनकी एक लाइफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन काफी तब्दील हुई। जी। ये नहीं मैं कहूंगी एक आइडियल सिचुएशन थी, सेंचुरीज का ऑपरेशन था, कभी गया नहीं, पर उस किस्म के जितने हम किस्से सुनते हैं बाकी पूरे देश भर में, कि कुओं से पानी नहीं लेने देते, बच्चों को अलग से बिठाते हैं, उनको पढ़ाते नहीं हैं, उस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन उस लेवल की बहुत कम इंसिडेंट्स सुनने को मिलते थे। अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है, इट वाज मच मच लेस, गई नहीं थी, और ज्यादतियां थी लेकिन उस लेवल की नहीं थी। अब क्या हो रहा है कि कुछ ये दलित ग्रुप्स का ने कुछ आवाज उठाई है रिसेंटली, और आप तक नहीं पहुंची होगी क्योंकि यहाँ का मीडिया भी बहुत कम कवर कर रहा है। जी। बहुत कम जो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ से कुछ रिपोर्टर्स ने खबरें भेजी हैं, बहुत कम जगह पे ये लगी है कि एक पिछले महीने एक उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट में एक कोई दलित लड़का था, उसकी हत्या हो गई, और पुलिस ने कहा कि ये एक लैंड विवाद था, जमीन विवाद था, उससे उनका कोई पुराना जमीन विवाद लग रहा था। लेकिन दलित ग्रुप्स का मानना है, और उनकी फैमिली ने कहा कि ये लैंड माफिया से जुड़ा हुआ। जब आप जो कानून क्योंकि नए जो बन रहे हैं, उसमें अंदेशा ये है कि जो लैंड रिफॉर्म्स के बेनिफिट थे वो रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि दलित जो हैं वो अपने आप को पावरलेस, आज भी वो पावरलेस है। मैं बात कर रही थी लैंड राइट्स से उनको फायदा मिला, लेकिन पावरलेस वो रहते हैं क्योंकि एक सेंचुरीज का ऑपरेशन चला आ रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें उनको लगता है कि सबसे ज्यादा जोर जबरदस्ती से, धमकियों से, बुलिंग से जो ज्यादा पावरफुल लोग हैं उनकी जमीन ले जाएंगे। और एक दलित एक्टिविस्ट का कहना था कि इस किस्म के इंसिडेंट्स थोड़े थोड़े सुने गए हैं, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, लेकिन इस किस्म की टेंशन कुछ और इलाकों में भी उनकी नजर में आई है। अभी मेरे पास भी पूरी डिटेल्स नहीं है, ये मैं उनसे सुनी हुई बात बता रही हूँ। जी, जी, जी। Thank you very much for this wonderful session.
लोग अभी तक सवाल पूछ रहे हैं, मैं बहुत सारे सवाल अभी नहीं ले पा रहा हूँ। देखिए कश्मीर पे आप बात करने लगेंगे तो 2 दिन भी कम है। जी जी, और जिस तरह से पिछले साल से पूरा प्रेस को दबाया गया है, बहुत सारी चीजें पहली बार लोगों को पता चल रही है। सो अब क्या मैं बोलूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत सारे मुद्दे आपने ग्राउंड रियलिटी से हम सबको वाकिफ किया। सो अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी आवाज हम और एम्पलीफाई करें और लोगों तक पहुंचाएं, और फ्रीडम ऑफ प्रेस को और खुल के बोलने के लिए हम सब यहाँ से मिलके एक ताकत बने, और आप पूरे जोर से ताकत से फिर एक बार आपके प्रेस के थ्रू आपकी आवाज हम तक पहुंचे। यही हम शुभकामनाएं और एक इच्छा व्यक्त करते हैं। और जैसे कि फैज साहब ने बोला था, तो वो हम सबको याद रखने की जरूरत है कि बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़बां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है जब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। सो थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you. From time to time we have seen both the speakers have been a sane voice for the rights of the people, and today was no different. I would like thank you all for joining us, especially both our esteemed guests. It was indeed a very important session. Thank you very much. Thank you. Yeah, and I would like to thank our wonderful audience and for the questions. Because of you, the session become more interactive and engaging. And last but not least, I would like to thank all of our friends, supporters, and the entire Pune Collective team who made this possible. And before closing today's session, with your permission, would like to recite few lines written by Zulfikar Naqvi साहब। तुम जो छालों की बात करते हो, तुम जो छालों की बात करते हो, क्यों हिमालयों की बात करते हो? किसके हाथों में था नहीं पत्थर, शाम वालों की बात करते हो। अपने चेहरे पे पोत कर कालक, तुम उजालों की बात करते हो। खुश्क रोटी तो दे नहीं सकते, तर निवालों की बात करते हो। जो नमक है हमारे जख्मों पर, उन हवालों की बात करते हो। छीन कर हमसे जुर्रत ए इजहार, अब सवालों की बात करते हो। जिस्म जिनके है बोझ रूहों पर, उन जियालों की बात करते हो, उन जियालों की बात करते हो। Thank you everybody for joining us. Before you go, just one quick announcement. We will be having our next live session on 22nd August at 6 p.m. on scientific temperament. So do keep in touch through our social media handles. We are on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. So please be in touch. And thanks a lot, everyone. We'll see you soon. Thank you. Thank you.